Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today's topic is watershed management. Watershed is an area from which runoff resulting from precipitation flows past a single point into a large stream, river, lake or an ocean. तो watershed वो एरिया है जिसमें प्रेसिपिटेशन से जितना भी वाटर प्रेसिपिटेशन आपको बताया था all types of water which is coming down in the form of ice, hailstorm, rainfall, etc. ये सारा जो प्रेसिपिटेशन से जो पानी आ रहा है एटमॉस्फेयर से ज़मीन पर वो सब एक सिंगल पॉइंट पे जॉइन होते हैं और वो हो सकता है कोई लार्ज स्ट्रीम हो, रिवर है, लेक है या सभी रिवर्स जो है वो किसी ओशन में जा कर के गिर रहे हैं. So watershed is a natural geohydrological unit whereby all streams are draining into a common point. Simply it covers all lands that contribute runoff draining into a common point. It is also referred to as catchment area or drainage basin. As you can see in this photo, this is the drainage basin. You can see that the various rivers, tributaries, they are joining together and ending at one single point, and that point may be any large stream river, and ultimately they all go and meet into the ocean. Even the underground water which is flowing beneath the earth's surface, that also joins to the ocean. So what is the watershed? All the water which is coming in the form of precipitation and the runoff water on the surface as well as the groundwater flow, they all combine at one point which is known as ocean. They are joining at the common point, and all of these are contributing, all this runoff are contributing to that drainage basin. So it is also referred to as a catchment area or drainage basin. Here we can see that in hydrological cycle we have seen that the water cycle, that is the water is circulating in the form of cycle. By the process of transpiration and evaporation, and then condensation takes place to form clouds. In the form of rainfall, it is coming down as precipitation. The ice is also melting. And I have told you that climate change is altering this water cycle. The temperature is rising, the sea level is rising, and the pattern of rainfall is also modified. Now all the precipitation, the runoff water, they combine at the single point, whether it is coming from some stream, river or channel flow, reservoir, even from the urbanization, industrialization, the water whichever is coming is contributing and joining at a common point which is connecting to the sea ocean. तो हम क्या देख रहे हैं कि एवापरेशन, ट्रांसपिरेशन, इन सब से जो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है वो कंडेंस होता है और क्लाउड्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और रेनफॉल से वो पानी फिर वापस ग्राउंड सरफेस पर आ रहा है. अब ये जो सरफेस पे जो गिर रहा है, सरफेस रन ऑफ हो सकता है, अंदर सीपेज यानी अंदर लीच होकर के जो पानी जा रहा है ग्राउंड के अंदर, वो भी ग्राउंड वाटर फ्लो की तरह अंदर से फ्लो होकर के, तो सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर फ्लो ये सब मिलकर के एक पॉइंट पर आकर के ज्वाइन होते हैं एंड दे ऑल कंट्रीब्यूट
to the catchment area or the drainage basin. So we see that all the forms of water, either it is in the form of ice और रेनफॉल या फिर जो ओले जो गिरते हैं, किसी भी फॉर्म में जो है वो वाटर सरफेस पे गिर रहा है और वो सब इकट्ठा हो करके सरफेस रन ऑफ और अंडरग्राउंड फ्लो मिल करके जो है वो सी में आ रहे हैं, ओशियन के अंदर पहुंच रहे। तो वी सी दैट देयर इज अ कॉमन कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। सारे जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं हम देख रहे हैं, देखिए अलग अलग चैनल से जो आ रहे हैं वो सारे एक कॉमन पॉइंट पे कंबाइन हो रहे हैं एंड दैट कॉमन कॉन्फ्लुएंस पॉइंट में बी द ओशियन, इट इज ओशियन। Now watershed classification, if we see, it is classified into three classes: micro watershed, mini watershed and macro watershed. Now these watersheds have been given codes which is known as watershed codification. The National Watershed Atlas is published by All India Soil and Land Use Organization. ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल लेवल पर पूरे इंडिया का जो है वाटरशेड एटलास बनाया है। दिस एडॉप्ट्स यूनिफॉर्म वाटरशेड कोड फॉर ऑल वाटरशेड्स इन इंडिया। पूरे इंडिया में जो है जितना भी वाटरशेड यानी ड्रेनेज बेसिन्स जो हैं वो सब कोड किए गए हैं ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। The watershed delineation has been done in 5 stages as regional, basin, catchment, subcatchment and watershed. इसको डिलिनिएट किया है कितने फॉर्म्स में? 5 स्टेजेस में: रीजनल, बेसन, कैचमेंट, सब कैचमेंट एंड watershed. Now these codes which was given by All India Soil and Land Use Organization, it has particular naming, जैसे कि केमिस्ट्री में IUPAC होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जूलॉजी बॉटनी में, इसी तरह से वाटरशेड कोडिफिकेशन भी होता है जिसमें आपको बताया था कि 5 स्टेजेस हैं: रीजन, बेसन, कैचमेंट, सब कैचमेंट एंड वाटरशेड। रीजन को जो है एक नंबर से डिनोट किया करते हैं, जैसे 4, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। सो फॉर एग्जाम्पल बेसन कोड अगर 4 है, रीजन और बेसन का 4E, जैसे इसके अंदर दिखाया 4E। कैचमेंट को 5 नंबर दिया है, सब कैचमेंट को A दिया है, फिर वाटरशेड को जो है 6, सब वाटरशेड को C, कैपिटल C से, फिर मिनी वाटरशेड को 2 एंड माइक्रो वाटरशेड को स्मॉल a। तो किसी भी एक रीजन का कोड क्या हुआ? 4, उस पर्टिकुलर रीजन का 4 कैपिटल E, 5 कैपिटल A, 6 कैपिटल C, 2 एंड स्मॉल a. तो दिस type of codification is given to the various regions. Now you can see that this is represented by alphanumerical method. Again if you can see one another example, दूसरा example देखें, region 4 नंबर से डिनोट किया है, basin कैपिटल B, catchment 3 नंबर, सब कैचमेंट कैपिटल B, वाटरशेड 7 कैपिटल C, 5D। तो इसका जो एग्जाम्पल का जो कोड हुआ वो क्या हुआ? 4 कैपिटल B, 3 कैपिटल B, 7 कैपिटल C, 5 and D. This codification system was developed by All India Soil and Land Use Survey. India has 6 water resources region.
अब जो रीजन जो हमने बताया था, जैसे 4 नंबर अभी पिछला एग्जाम्पल जो बताया था, तो रीजन रिफर्स द मेजर ड्रेनेज सिस्टम एट नेशनल लेवल। जो रीजन्स हैं वो नेशनल लेवल पर मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। एंड इंडिया हैज़ 6 वाटर रिसोर्सेस रीजन्स which are notified by unique number. Now the 6 regions includes Indus region, Ganga region, Brahmaputra region, all rivers draining in Bay of Bengal, all rivers draining in Arabian Sea, and ephemeral drainage in Rajasthan. Ephemeral drainage किसको कहते हैं हम, जो those which are lasting for a very short time. You all know that Rajasthan has dry area. It comes under dry area. तो यहाँ पे जो स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये क्या है, कुछ समय के लिए रहते हैं, बहुत पूरे साल भर या वर्ष पर उपरांत नहीं पाए जाते हैं, बिकॉज दे ड्राई अप एंड दे डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। अगर बहुत अच्छी रेनफॉल है तो पानी से भरा हुआ होगा स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, या फिर ड्राई है, ड्रॉट एरिया आ गया, यानी अकाल पड़ गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो सूखने लग जाते हैं। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन गिवन नेम एपिमेरल ड्रेनेज, बिकॉज राजस्थान कम्स इन द ड्राई जोन, हॉट एरिया है ये। तो 6 जो वाटर रिसोर्सेस हैं वो कौन से हुए, जो इंडस रीजन, जो हिमालयंस वाला जो एरिया आप लाइट ब्लू कलर में देख सकते हैं, गंगा रीजन डार्क ब्लू कलर, और ब्रह्मपुत्र रीजन जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। अब वो सारे रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो रिवर्स जो अरेबियन सी में गिर रहे हैं, और राजस्थान का एफिमेरल ड्रेनेज। So this all comes under the regions, and at national level they are being classified into 6 water resources. Now each water resource region is delineated into different basins constituted by individual river or system of rivers. This is notified by capital letters in sequence. जो रीजन है वो फिर फर्दर डिलिनेट किस में हुआ, डिफरेंट बेसन्स में, और वो जो डिफरेंट बेसन है वो या तो इंडिविजुअल रिवर होगा या सिस्टम्स ऑफ रिवर्स होंगे। तो एज वी हैव सीन हियर, जो रीजन है वो 4 नंबर है, और कैपिटल बी जो है वो बेसन है। तो द बेसन कोड, फॉर एग्जाम्पल, फॉर कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट टू वाइगा इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, वो है कैपिटल 4A। 4A। नेक्स्ट कम्स द कैचमेंट विच इज द सब ड्रेनेज सिस्टम इन अ बेसन। तो रीजन से हम डिलिनिएट होकर के किस में आए हैं, बेसन, बेसन से फिर कैचमेंट। So the various delineations were regional, basin, catchment, sub-catchment, watershed. तो इंडिया का ये जो एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें डिलिनिएशन जो है वो रीजन का हुआ, फिर उसके बाद बेसन, बेसन से फिर कैचमेंट, और कैचमेंट से सब कैचमेंट। इसी तरह से आप इधर देख सकते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है वाटरशेड का, माइक्रो वाटरशेड, सब वाटरशेड, और फिर सब कैचमेंट। तो इस तरह से जो है रीजन को बेसन में डिलिनेट करते हैं, फिर बेसन को जो है कैचमेंट, कैचमेंट के अंदर फिर आता है सब कैचमेंट, और फिर उसके अंदर आता है वाटरशेड। सो कैचमेंट क्या है, कैचमेंट इज द
सब ड्रेनेज सिस्टम इन अ बेसन एंड इज नोटिफाइड बाय यूनिक नंबर। जैसे कि अगला फिगर आएगा न्यूमेरिकल, जैसे 2 या 4। Now for example, if we take the example of Kaveri Basin, कावेरी बेसन जो है वो इरोड, कोयम्बटूर, सैलम, डिंगुल, नामाक्कल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलूर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, इन सब एरियाज को ये कवर करता है। तो दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ कावेरी बेसन। अब इसमें सब कैचमेंट, the region is 4, basin B and catchment 2. The sub-catchment is the subdivision of catchment and it is notified by capital letter. The 4B2 Kaveri catchment has 3 sub-catchments. जो रीजन है वो कौन सा हुआ? वो रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिर रहे हैं। और बेसन के बाद आया कैचमेंट, जो फिगर नंबर 2 से डिनोट किया है। अब फर्दर जो है सब कैचमेंट, कावेरी कैचमेंट के 3 सब कैचमेंट्स हैं, अमरावती, नोयल और भवानी। You can see here the various catchment and the sub catchment in कावेरी बेसन। तो जो 3 सब कैचमेंट्स हैं वो है अमरावती, जिसको 4B2A से डिनोट किया है, नोयल 4B2B से डिनोट किया है, और भवानी 4B2C। This is the Amravati region, then here comes the Noel and then Bhavani. So the catchment of this basin, कावेरी बेसन, जो कावेरी बेसन है उसका जो कैचमेंट है वो तो था 4B2। अब इसके अंदर जो सब कैचमेंट्स थे 3, अमरावती, नोयल और भवानी, इसको ABC से डिनोट किया है फर्दर। अब ये जो सब कैचमेंट्स हैं उसमें आते हैं फिर वाटरशेड। तो वाटरशेड्स आर द सब डिविजन ऑफ सब कैचमेंट एंड इट इज नोटिफाइड बाय यूनिक नंबर एंड इट इज यूजुअली द तालुक लेवल। जो तालुक लेवल पर आ जाता है वो वाटरशेड रीजन होगा। तो इसको फिर फर्दर फिगर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 4B2A जो अमरावती वाला एरिया है उसका जो तालुक लेवल पर वाटरशेड होगा तो उसको 3 नंबर से डिनोट किया है। द वाटरशेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द नेशनल एटलास। तो जो डिलिनिएशन हुआ था सबसे बड़ा तो था हमारा जो नेशनल लेवल पर है वो है रीजन। फिर उसके अंदर बेसन्स, जो 6 बेसन्स बताए थे आपको, इंडस रीजन, गंगा रीजन, ब्रह्मपुत्र रीजन and the all rivers which are draining in Bay of Bengal, all rivers draining in Arabian Sea and ephemeral drainage in Rajasthan. तो कावेरी जो है वो किस बेसन जो है वो कौन से रीजन में आएगा? ऑल रिवर्स ड्रेनिंग इन बे ऑफ बंगाल में आएगा। बेसन, कावेरी बेसन, कैचमेंट एरिया, फिर सब कैचमेंट और फिर वाटरशेड। तो वाटरशेड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है नेशनल एटलास पे। द वाटरशेड इज फर्दर डिलिनिएटेड टू सब वाटरशेड, मिनी वाटरशेड एंड माइक्रो वाटरशेड। तो माइक्रो वाटरशेड्स को फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 इस तरह से नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। So we have seen the
that how the watershed is delineated according to the area. तो सबसे बड़ा एरिया किसका होगा? रीजन का। उसके अंदर आएगा बेसन, कैचमेंट, सब कैचमेंट, वाटरशेड, फिर उसमें जो है सब वाटरशेड, मिनी वाटरशेड और फिर माइक्रो वाटरशेड। तो अकॉर्डिंग टू द वाटरशेड कोड, जैसे जैसे रीजन को नॉमिनेट करते हैं वैसे रहेगा, एंड दैट इज फिक्स्ड थ्रू आउट इंडिया। क्योंकि जो ऑल इंडिया सॉइल और लैंड और यूज ऑर्गेनाइजेशन है, जो उन्होंने वाटरशेड एरियाज को जो कोड्स दिए हैं, दैट इज कॉमन, दैट इज इट इज एट द नेशनल लेवल, सेम रहेगा हमेशा। एंड दिस हैज बीन गिवन थ्रू आउट इंडिया। ये जो वाटरशेड एटलास है इंडिया का, ये इनके द्वारा बनाया हुआ है, and the latest version is available on net. You can go through it and see the various and the different regions of watershed in India. In our next class we will discuss about the advantages of this watershed and what type of managements are required. Thank you so much.